Assalamualaikum students, I hope you all are doing good and well. Today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Substance in the Surroundings, Their States and Property, and this will be our chapter 5. So students, we have seen many things around us, right? We have seen many things around us like water, milk, door, pillow, bed, press, and many more things that are seen around us and that contain some things, right? That contains some ingredients inside or some containment inside, right? So what are the content of, right? So we will study in this chapter how they change their states and what are their properties. तो हम लोग वही सब इस इन इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे. तो लुक एट दिस change of state of substance. Everything around a student have 3 states and the name of the states are solid. या तो हमको वो solid में दिखाई देंगी, या तो हमको वो liquid में दिखाई देंगी, या तो हमको gases में दिखाएंगी. ये तीनों states के अलावा हमको substance कोई भी दूसरी states में नहीं दिखाई देंगे. Okay, so let's start the study then. Change of state of wax. Look at this 5.1 exercise. Piece of wax. What you observe in the initial state of the wax. Wax की initial state जो है वो आपको solid की तरह दिखाई देंगी. जब आप उसको मेल्ट करेंगे स्टूडेंट तो वो आपको लिक्विड की तरह दिखाई देंगे. फिर आप उसको स्पिरिट लैम्प में क्या करेंगे, उसको भर देंगे, ठीक है. और फिर उसके बाद में जब आप उसको थोड़ा सा ठंडे पानी के ऊपर थोड़ी देर रखेंगे ना, तो इट विल ग्रेजुअली चेंज इनटू सॉलिड स्टेट. तो ये सब क्या है, वैक्स की स्टेट्स है जो चेंज होते जा रही. जैसे ही हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या हो रही, लिक्विड हो जा रही. और जैसे ही हम उसको कोल्डनेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रही, सॉलिड हो जा रही. तो दिस इज़ नथिंग बट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वैक्स. तो look at that orange box. When a substance change from one state to another, the process is called change of state of the substance. जब substance change होगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो उसको क्या बोलेंगे, change of state of the substance. Now look at this. Read the list of substance that is spirit, camphor, petrol. यहाँ पे आपको examples दिए हुए, तो आपको बताना है which one freezes in winter. Next, which liquid have you seen change into a vapor, and which solids directly change into a gaseous state. You have to write answer here. Okay, now this will be your homework. Look at that orange box. The state of substance changes if it is heated or cooled. Exactly. जब आप उसको हीट देंगे, कोई भी सब्सटेंस को हीट देंगे या कूल करेंगे, तो उसकी स्टेट ऑफ सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाएंगी. Every substance in our surrounding is found in either the solid, liquid or gaseous states. I have told you earlier that कोई भी सब्सटेंस जो है वो 3 ही स्टेट में दिखाई देगा, या तो सॉलिड होगा, either it is liquid or gaseous state. Now look at that purple box. In the past 19th century, the scientist Willard Gibbs showed that the characteristic properties of substance depend on its physical state. सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो भी है उसकी फ़िज़िकल स्टेट पे रहेंगी कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स है. लाइक अगर सब्सटेंस सॉलिड है तो उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है. सब्सटेंस लिक्विड है तो उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो थोड़े कम है. और सब्सटेंस जो गैसेस है उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो रेयरली अरेंज है. तो ये अरेंजमेंट ऑफ सब्सटेंस है कि किसके अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज है, किसी के अंदर लूजली अरेंज है और किसी के अंदर हाईली लूज्ड अरेंज है. तो ये किस पे डिपेंड रहेगा, फिज़िकल स्टेट पे डिपेंड रहेगा. और फिज़िकल स्टेट इज़ नथिंग बट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हियर इज़ द टेबल गिवन having points solid, liquid and gases, and examples are given. Their shape and volume is also given. A piece of iron का पीस जो है वो ऑब्वियसली सॉलिड में काउंट होगा स्टूडेंट. उसका शेप जो है उसका खुद का शेप रहेगा और वो उसका शेप रिटेन्स करेगा, ठीक है. नो मैटर हाउ इट इज़ केप्ट, मतलब वो कहीं पर भी रख दिया जाए उसका शेप जैसा का वैसे ही रहेगा. वॉल्यूम हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, उसका एक खुद का वॉल्यूम रहेगा. सॉलिड्स लाइक शुगर, सैंड व्हेन पोर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हीप. और सॉलिड्स लाइक शुगर हो गए, सैंड हो गया, ये अगर फ्लैट सरफेस पे रखेंगे तो ये हीप बन जाएगा, ठीक है. एक बड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, आटा कैसे हो जाता, डो कैसे बनेगा, वैसा इसका एक हीप बन जाएगा. तो इनके डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रहेंगे, लेकिन आयरन पीस का एक वॉल्यूम रहेगा. Now liquid, water, spirit and oil. These are the example.
what is what does the liquid have shape? Does not have a shape of its own. लिक्विड्स के पास उनका खुद का शेप नहीं रहेगा. टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. आप उसको कोई भी कंटेनर में डालो, वेदर इट इज़ थिन और वेदर इट इज़ थिक, इट विल रीगेन देयर शेप, राइट. वो कंटेनर के शेप में आ जाएंगे. तो लिक्विड्स के पास अपना खुद का शेप नहीं रहेगा, सॉलिड्स के पास अपना खुद का शेप रहेगा. इट हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम. और लिक्विड का खुद का एक वॉल्यूम होता. ऑक्यूपाइज डेफिनेट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर. जो भी कंटेनर रहेगा उसका डेफिनेट पोर्शन ऑक्यूपाई करेंगे. स्प्रेड ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑन पोरिंग. फ्लैट सरफेस पे क्या हो जाएंगे? स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे. फ्लोज डाउन अलॉन्ग अ स्लोप. और अगर स्लोप से नीचे उनको पोर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? फ्लो होंगे. नाउ गैसेस. तो एग्जाम्पल ऑफ गैसेस इज एयर. डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन. गैसेस के पास में भी खुद का शेप नहीं रहेगा. ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस. और जितनी भी स्पेस रहेंगी, जहाँ जहाँ भी स्पेस रहेंगी वो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी. नाउ डज नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. उसके पास खुद का वॉल्यूम नहीं रहेगा. ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन द गैस इन अ क्लोज कंटेनर इट वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस. एग्जैक्टली स्टूडेंट, अगर उसको वॉल्यूम, गैस के पास अपना खुद का वॉल्यूम नहीं रहेगा. अगर आप उसको कंटेनर में डालेंगे तो वो कंटेनर में भी उसका वॉल्यूम चेंज होते जाएगा. हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट. उसके बाद में हीट और चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट देखना है आपको स्टूडेंट. तो लुक एट दैट बॉक्स. ऑन हीटिंग. ऑन हीटिंग जो सॉलिड है, अगर आप उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है. और अगर आप लिक्विड को हीट करेंगे तो फिर वो वेपर्स बन के गैस बन जाएगा, ठीक है. वैसे ही वाइस वर्सा आप देखना है कि अगर आप गैस को हीट करते हैं, सॉरी गैस को आप कूल करते हैं, ठीक है. एक गैस है आपके पास में. इट इज़ नॉट ईजी टू कूल अ गैस, बट इफ़ इट इज़, तो कूलिंग के बाद, गैस को कूलिंग के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे. और अगर लिक्विड को कूल करेंगे आप तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा. तो यही चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट है ऑन प्रोवाइडिंग हीट और ऑन प्रोवाइडिंग कूलिंग. नाउ नीचे वी विल लेट स्टडी द थर्मोमीटर. ओके. डज वाटर चेंज इनटू अ वेपर द मोमेंट वी प्लेस द वेसल ऑन द स्टोव? बिल्कुल भी नहीं. वाटर डायरेक्टली वेपर में चेंज नहीं होगा. थोड़ी देर जब जिस वक्त तक हम स्टोव ऑन करेंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, वाटर ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि वाटर जो लिक्विड स्टेट है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा? गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा. अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी गेन और लॉस्ट बिफोर द स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज. अगर आपको सब्सटेंस का स्टेट चेंज करना है तो आपको उसको स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी, ठीक है. या फिर उसके अंदर की स्पेसिफिक हीट जो है उसको लॉस करना पड़ेगा, तब जाके जो फिजिकल स्टेट है सब्सटेंस का वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. द चेंज इन फिजिकल स्टेट इज डिटरमाइंड बाय हाउ हॉट द सब्सटेंस बिकम ऑन गेनिंग हीट और हाउ कोल्ड ऑन लूजिंग इट. कोल्ड कब हो जाएगा? जब उसके अंदर की हीट क्या होंगी? लूज़ होंगी. और हॉट कब हो जाएगा? वो जब उसके अंदर हीट गेन हो जाएंगी. तो हाउ डू वी टेल हाउ हॉट और कोल्ड अ सब्सटेंस? तो हम कैसे चेक करेंगे कि सब्सटेंस कितना कोल्ड है और कितना हीट है? बाय थर्मोमीटर, ऑब्वियसली. द टेम्परेचर एंड अ थर्मोमीटर, वी विल स्टडी इट. व्हेन अ सब्सटेंस गेट हीट, जब सब्सटेंस को हीट मिलेंगी, इट बिकम वार्म एंड देन हॉट. ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? वार्म हो जाएगा और फिर हॉट हो जाएगा. वी पुट आर हैंड और फिंगर इन द वाटर टू जज हाउ इट इज़. ऑब्वियसली जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हम उसको चेक करते रहते हैं अपने हाथ से, अपनी उंगली से, कि वो कितना गर्म हुआ कि कितना नहीं. तो वैसे ही थर्मोमीटर भी इसके लिए यूज़ होता है, ताकि हम चेक करें कि वो कितने % गर्म हुआ और कितने %, मतलब कितना ठंडा हुआ. Beside, if the substance is very hot, we could get scalded. A thermometer is used to measure temperature. Thermometer जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है. Besides, डिग्री सेल्सियस इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. और टेम्परेचर को हम स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे. किस में? डिग्री सेल्सियस में. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर अवेलेबल नाउअडेज. अब आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज़ हो रहे हैं. टेक अ थर्मोमीटर फ्रॉम अ लाइब्रेरी. और आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है. आपको एक बीकर लेना है, उसके अंदर आइस क्यूब्स डालने हैं और थर्मोमीटर का जो बल्ब रहेगा तो उस साइड से आपको उसके अंदर उसको डिप करना पड़ेगा, ठीक है. थर्मोमीटर के अंदर एक स्केल रहेंगी जिसमें आपको 10, 20, 30 करके जो नंबर्स है वो मेजरिंग नंबर्स दिखाई देंगे. और उसके अंदर क्या दिखाई देंगे? आपको मर्क्यूरी दिखाई देंगे, ठीक है. तो मर्क्यूरी विल ग्रेजुअली अप when the temperature is up and it will gradually down when the temperature is down. तो मर्क्यूरी जो है वो आपको टेम्परेचर बताने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है. एंड मर्क्यूरी विल बी ऑफ रेड कलर और मे बी ऑफ ब्लू कलर.
तो उसकी वजह से हम टेम्परेचर रीड कर सकते हैं. Hold the thermometer in water so that bulb is completely immersed in the water and read the temperature of the water. Repeat the activity taking some hot water in vessel and cold water or ice in another. You have to do it activity at your home and आपको बताना है कि उसका टेम्परेचर कब बढ़ेगा और कब उसका टेम्परेचर कम होगा. हियर आर द सम एग्जाम्पल. बॉइलिंग वाटर जो है आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे दिखाई देगा स्टूडेंट. फ्रीजिंग वाटर जो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे दिखाई देगा. एयर लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस पे दिखाई देंगी. समर की एयर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस की एयर पे दिखाई देंगी. इनसाइड अ फ्रिज 5 डिग्री सेल्सियस दिखाई देगा. इनसाइड द फ्रीज़र -18 डिग्री सेल्सियस पे दिखाई देगा. और बॉडी टेम्परेचर आपको हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पे दिखाई देगा अगर वो कूल टेम्परेचर है. लेकिन आपको जैसे ही बुखार आएगा या फिर आपको जैसे फीवर रहेगा आपको तो 97-98 अबव जाएगा. तो आई होप स्टूडेंट आपको स्टेट्स टेम्परेचर थर्मोमीटर के बारे में you will get my all points clear. So in the next video we will going to study boiling and many other process. Okay, so thanks for watching and Allah.